अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हमने एक कनेक्टिंग टॉपिक करना है which is connecting pressure with temperature and that is called gas law. We have actually few gas laws. वही वाले. Yeah. And rather we got two gas laws which is called like Boyle's law and Charles' law. These two laws, they relate pressure, volume, and temperature. These three factors, pressure denoted by P, capital P, volume by capital V, and temperature by capital T. So we are going to use these three terms for these two laws. Initial, we are going to use these two terminologies as well, initial and final. You are quite familiar with these two words. For initial pressure, volume, and temperature, we are going to use 1 in the base. And for final, we are going to use 2. Okay? First, we are going to discuss Boyle's law. Anyone, if you have any idea, share any thoughts about Boyle's law? What do you understand or what do you know about it? Boyle's law. Since these two laws are related to gases, so best example of compressing, the volume is related to the compression and expansion of the gas. Let's suppose we got a container. Container की बजाय I'm just making a cycle में हवा भरने वाला pump. और उसमें इस तरह से करके piston या stopper सा होता है जो move कर रहा होता है, just like the injection string. So if we do exert pressure on the handle of this cycle pump, let's suppose when the initial pressure is less, we got this volume. If I call this pressure as initial pressure and that volume as initial volume, then I will denote them with P1 and V1. Now, let's suppose you apply some pressure on this handle. What is going to happen to the volume of the air column? Will it remain same, or it will decrease, or it will increase? If we increase the pressure on the handle, what is going to happen? Aruba, it will decrease. Let's suppose the new volume, it will become this. Okay? It has moved down and this will be the new volume. And we call it V2S final volume. When we increase the pressure to
P2. All right. So what do you think what is going to happen here? If we increase pressure, volume decreases or increases? It decreases. And when we decrease pressure, what happens? The pressure, the volume increases, right? If we take the example of that induction spring, when we exert pressure with our thumb on it, what happens? The volume of the air decreases. Okay? So these two quantities, pressure and volume, they are directly or inversely proportional to one another. People online, Bakhtiar, Hadia, Alibad, Usman, Khadija. So if we apply more pressure, the volume decreases. So the relation between pressure and volume is that pressure is inversely proportional to volume. So inversely means the same sign, but inversely means 1 over volume. If I just write it in symbolic form, I'll have pressure is inversely proportional to volume. Okay, for gases, this do happen in liquids also, but liquids they compress to very small extent. But gases they expand and contract at a significant way. We can see that it's very visible. Easily. Okay, so we call them gas laws. First law, Boyle's law, is between pressure and volume. PV. So more pressure, less volume. Less pressure, more volume. All right. So when we break this sign of proportionality, we need to bring a constant here. P is equals to constant and 1 over V. Now what we need to keep constant here in this case, what if I just increase the temperature here? What is going to happen to this volume? It will rise. What if I just increase more air into it? What will happen? It will rise. So do you think this relation will be true? So I have to keep so many factors constant. I have to keep the mass of the gas constant. I have to keep the temperature of the gas constant, right? Okay, and the nature of the gas as well. I cannot change the gas. I'm doing it for neon and I cannot bring in the helium. Okay, so when we are keeping so many factors constant, then we just bring in a word which is called gas constant. So P is equals to constant is another gas constant, which is called K. P is equals to K and 1 over V as it is. This K is called gas constant. All right. So if I need to find the values for K, I have to bring this V on this side. I will get P. V is equals to K. That means the product of pressure and volume will remain constant. मतलब पता है क्या है इसका? मैं इसको इधर लिखूंगा so that you can see. PV is equals to K का मतलब है the product of pressure and volume remains constant. ठीक है? So if we have P1, V1, that will be equals to P2, V2, and that will be equals to K. All right? Why? ठीक है बेटा? So P1, V1 will be equals to P2, V2, and that will be equals to K. इसी तरह से Can you explain this equation again? बेटा, if we are observing a gas, ठीक है? ये कौन बच्चा था वैसे? हादिया.
या फातिमा? Adia. हादिया, हादिया, बॉयल्स लॉ, इस दफा आप भी सुन लो बेटा। गैस लॉज में दो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। गैस लॉ किससे रिलेटेड होता है? गैसेस के साथ, ठीक है, क्योंकि गैसेस में हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों को आपस में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो बॉयल्स लॉ रिलेट्स द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इंजेक्शन सिरिंज में प्रेशर लगाओगे तो एयर कॉलम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक किया, we brought this constant here, PV is equals to constant. That means the initial pressure and initial volume of a gas will remain equal to the final pressure and final volume of the gas. That remains constant, fixed, एक जैसी relation. All right? Hadia, अगर बेटा if we have like 3-4 different observations, then for all the pressure and volume observations, we will have P1 V1 is equals to P2 V2 is equals to P3 V3 is equals to so on. That will be equals to constant. ठीक है, जैसे डेंसिटी कांस्टेंट थी, जैसे और चीजें कांस्टेंट थी, ऐसे ही एक गैस का रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड। ओके, सो we just use P1 V1 is equals to P2 V2 as Boyle's simplified shape of the Boyle's law. That pressure and volume, they are inversely proportional to each other. The product of initial pressure and volume of a gas is always equals to the product of final pressure and volume of a gas. So out of these four variables, four quantities, if you know any three of them, we can determine the fourth one by using algebraic expression. ठीक है ना? कैसे बना, कैसे? हादी, आई एम श्योर कुछ कुछ समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ, अब थोड़ा सा मैं इसको न्यूमेरिकली करवाता हूँ तो थोड़ा और इजी हो जाए। लेट्स सपोज P1 is equals to 10 pascals and 10 pascals के साथ वॉल्यूम जो था ना V1, that one was equals to 35 centimeter cube. All right. P2 पे let's suppose we apply more pressure, हमने इसको डबल कर दिया, 20 pascals कर दिया। V2 क्या होएगा? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अभी सॉल्व नहीं करें, जस्ट टेल मी, पहले प्रेशर वाज 10, लेट्स सपोज यहां पर कोई एक बच्चा बैठा हुआ, ठीक है, उसका वॉल्यूम ये था V1, ये गैस है इसके अंदर। अब एक और बच्चा बैठा हुआ है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वॉल्यूम ऑफ द एयर, ये जो कॉलम है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमने प्रेशर इंक्रीज किया, डबल कर दिए, तो ये कॉलम डिक्रीज हो जाएगा ना, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो अब प्रेशर डबल होने की वजह से वॉल्यूम कितना है? V2 question mark. Now, can you find out that with the help of this relation? P1 V1 is equals to P2 V2. So what is V2? Sir, 17.5. 17.5. शाबाश अली, शाबाश बख्तियार। All right. 17.5 centimeter cube या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। वॉल्यूम में क्या आता है? क्यूब। शाबाश, वेरी गुड। देख रहे हो, इसका हाफ हो गया, प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो गया। ठीक है, दिस इज बॉयल्स लॉ। आप समझ में आ रहा है सबको? कोई क्वेश्चन बेटा यहां तक? बॉयल्स लॉ क्लियर है? इस दफा बोरिंग है, वेरी बोरिंग है।
जरूर चार्ल्स लॉ कर लेते हैं जो तुम्हें ये नहीं अच्छा लग रहा। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की ना प्रेशर और ले लो बेटा, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन हो? लेट्स सपोज अब हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे बना? क्या तो सर क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा जो होगा प्रेशर वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल्स के दरमियान ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा मतलब बाउंस करेंगे और रैंडम मोशन उनका ज्यादा हो जाएगा और वो ऐसे फिर ज्यादा स्पेस ले लेंगे। बख्तियार है ना, नया माइंड सीखता है, पहले ऐसे टेक्स्ट किया कोलिजन थ्योरी सर। अपनी सारी वो लेट निकाल रहा, पूरी डिटेल्स बता रहा है। वेरी गुड बख्तियार, आई एम ग्लैड, शाबाश शाबाश, गुड बॉय। बिल्कुल इसी तरह से इंटरेक्ट किया करो, इसी तरह से पूछा करो और बताया करो सब लोग, राइट? बिल्कुल भी वो नहीं, गलत आंसर जैसा भी है प्लीज आंसर नहीं। ओके शाबाश। अब यार सीन ये है कि बख्तियार कह रहा है कि सर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लो जी, इधर आग लगा देते हैं नीचे हम, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये वॉल्यूम है, लेट्स सपोज इधर नीचे मैंने आग लगा दी। टेम्परेचर भी तो देना है ना, आग लगाने का मतलब नहीं आग ही लगा दी, इधर हीट देना चाहिए। ऑलराइट, सो क्या होएगा? क्या होएगा? ऊपर को जाएगा। ऊपर को जाने का मतलब क्या है? इसका वॉल्यूम पे इफेक्ट होएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम की तो बात ही नहीं हमने करनी, बिकॉज चार्ल्स लॉ इज बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वॉल्यूम को क्या करें फिर? प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज? बहुत अच्छा आ जाएगा कहीं से। ये थोड़ी नीचे से प्रेशर इंक्रीज होगा। नीचे से प्रेशर इंक्रीज होगा, क्या चूल्हा अंदर चला जाएगा? नहीं सर, मतलब वो बॉयल आएगा तो वो राइस कर। सोचो सोचो, वही पिस्टन वाला केस। मैं दोबारा से क्वेश्चन बताता हूँ। देखो बेटा, वो याद है पिछले केस में हमने दो बच्चे ऊपर बिठा दिए तो वो बैठ गए, पिस्टन यहाँ तक आ गया। अब बख्तियार सेट के अगर हम यहाँ पे हीट करें, टेम्परेचर राइज करें, तो यहाँ से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर का मतलब है ऊपर से और प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ही सेट के जो गैस पार्टिकल्स है ना अंदर, they will have extra kinetic energy, they will gain kinetic energy from this heat, more kinetic, so they will press it hard. But the thing is, खाकान कि ये तो पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? कर जाएगा ना, लेकिन ये रिलेशन किसके बीच में है? तो हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? यस, दिस इज द इश्यू। वॉल्यूम फिक्स करना पड़ेगा, इसको लॉक कर दें यहाँ पर। ये नहीं अब मूव कर सकता पिस्टन ऊपर नीचे, बस अब हीट में अब क्या होगा? और अगर मैं और बढ़ाता जाऊं, हीट करता जाऊं, इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारा प्रेशर कुकर। इस पे खाना वाला बनता है, वो एक ऐसा पॉट सा होता है, ऊपर उसके वेट्स आप रख देते हो, ठीक है ना? अब इस वक्त ऐसी ड्राइंग बन सकती है। ऑलराइट, यहां से आप इसको हीट किया। लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता यहां पर कोई चीज फंस जाती है इसके अंदर, जब यूजुअली वो पल्सेस वगैरह करते हैं ना, जब बॉयल करते हैं, तो अगर इसको ज्यादा भर दे पानी और ज्यादा वो डाल दे, तो यहाँ पे इसकी नोजल में समटाइम्स कोई ना कोई दाने इसके फंस जाते हैं। लेट्स सपोज स्टीम ही नहीं निकल रही, दैट मींस वॉल्यूम इज फिक्स्ड नाउ, you are increasing the temperature. What is happening to the pressure of this pressure cooker? Increasing, और heat दे रहे हो, इस दफा और pressure increase हो रहा है, ठीक है? So pressure and temperature, they are डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, keeping the volume and other things constant. शाबाश, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और बाकी फैक्टर्स, और चार्ल्स लॉ में
वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रखने हैं. ओके, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक होएगा तो फिर क्या आएगा, P is equals to KT. Let's make the K as a subject. We will have P over T is equals to K. ठीक है जी. So this is Charles law. इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, P1 over T1 is equals to P2 over T2 is equals to constant. हम ये ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है बेटा. तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ. So this is Charles law and this was Boyle's law. This is Charles law. ठीक है, हमने इन दोनों को कर दिया प्लस, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को प्लस कर दिया, और वो क्या बन गई, इट्स अ जनरलाइज्ड फॉर्म. हमने ये दो लॉ मिक्स कर दिया, मिला दिया. पहले तो मुझे ये बताओ यहां तक ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी. बख्तियार, फातिमा, हादिया, अली, उस्मान, खदीजा, बेटा कोई क्वेश्चन यहां तक पूछ लो. नो सर. Okay, then we have just generalized them. We have added both these two and we gave them a name as generalized form of gas law. We call it general gas equation. हमने जब इन दोनों को मिक्स किया, मिलाया आपस में, तो क्या बन गया हमारे पास, P1 V1 over P1 is equals to P2 V2 over P2. P1 V1 was actually this Boyle's law. P1 over T1 was Charles law. तो हमने इसको ये generalized form, general gas equation में convert किया. This is the generalized form. ठीक है. So out of these 6 values, if any 5 of them they are given to you or provided to you, we can determine the rest of the 6th one. ठीक है. चलो. That is the generalized form. वो generalized form कैसे? Let's suppose कोई भी केस गिवन है आपको, एक उसका केस गिवन है जो वो होता है हाइड्रोलिक प्रेस. ठीक है, ये पाइप से और ये एक और सिलेंडर. अब यहाँ पे T1 कुछ भी है और ये इसका V 100 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर लेट्स सपोज T1 40 डिग्री सेल्सियस. जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, और इसका सॉरी इधर इसी के हमने टेम्परेचर चेंज करके क्या कर दिया, राइज किया टेम्परेचर. तो इसका टेम्परेचर हो गया फाइनल एज 60 डिग्री सेल्सियस. वॉल्यूम हो गया इसका 130 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड
प्रेशर, फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो हम इस केस में ना बॉयल्स लॉ यूज कर सकते हैं ना चार्ल्स लॉ, रादर वी आर गोइंग टू यूज जर्नल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये थ्री वैल्यूज, वी जस्ट यूज देम एंड सिंप्लीफाई। ठीक है बेटा, इसी तरह से let's suppose I'm just giving you a question. Let's suppose we have सर जी बेटा। सर जो गैस के क्वेश्चंस होंगे गैस रिलेटेड प्रेशर के वो इन तीन फॉर्मूला से कर सकते हैं सारे बस। तीन फॉर्मूला से कर सकते हो अली, और अगर इन तीन फॉर्मूला में से आपको याद नहीं रहता तो दिस इज द मेन थिंग। ये अगर आप याद कर लेते हो तो आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ खुद को खुद याद हो जाएंगे। देखो भला कैसे, दिस वन इज द फर्स्ट लॉ, P1 V1 वाला, तो PV इज इक्वल्स टू K, तो ये क्या है, बॉयल्स लॉ। V हाइड कर दो तो प्रेशर एंड टेम्परेचर इज चार्ल्स लॉ, राइट। तो इस तरह से आप उनको भी याद रख सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है आपको तो इसमें से एलिमिनेट कर दो, ऑटोमेटिकली रिमेनिंग वाली आप यूज कर सकते हो वैल्यूज। अगर आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, सिर्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर है, इनिशियल एंड फाइनल, तो हम V को गाइड कर देंगे इसमें से, इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जो तीसरी चीज नहीं, ओके सर थैंक यू। ठीक है बेटा, आज जो देखते हैं, एक सिलेंडर विच कंटेन अ गैस, ये खाकान का सर्विस स्टेशन है। ठीक है, उसने ये वो मशीन और अपना पेडस सेट किया हुआ है, वो जो नहीं करते गाड़ी का पंक्चर वगैरह जो सारा सेटअप होता है, तो इसका जो सुपरवाइजर वो रात को गया, उसने मीटर से चेक किया इसका प्रेशर इस सिलेंडर का, तो प्रेशर वाज 400 pascals। इस सिलेंडर का वॉल्यूम तो उतना ही जितना है, रात का जो टेम्परेचर था ना, दैट वाज जाते हुए, दैट वाज लेट्स सपोज 17 डिग्रीज सेल्सियस। जब ये सुबह आया तो टेम्परेचर वाज क्वाइट लो, बट इस गेज से उसको प्रेशर पता लग गया, P2 is 320 pascals. Can you find out the temperature? ठीक है, अब देखो जरा, we have this equation, इसमें क्या चीज गिवन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर चेंज हो रहा है, जितना बड़ा रात को छोड़ के गए थे उतना ही सुबह होगा, छोटा तो नहीं हो जाएगा बेचारा, या बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा। सो वॉल्यूम इज फिक्स, तो इसमें से हम वॉल्यूम हटा दें, ये हटा दें, बाकी की इक्वेशन को यूज करके वी कैन डिटरमिन T2। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर जर्नल गैस इक्वेशन याद कर लें तो उससे हमारा पर्पस सर्व हो जाए। कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, करके देखो जरा बेटा। Hakan, what do you expect? प्रेशर कम हुआ है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि दोनों क्या है आपस में, शाबाश, गुड। सो चेक योर आंसर। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या ख्याल है सफा, वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का? हवा वाला वो सिलेंडर देखा है, रात को ये खातान छोड़ के गया तो सुबह छोटा हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम क्या हुआ? तो कांस्टेंट होगा कि वो तो रहेगा? इसमें से टाइप कर दो। ओ यस, गुड बॉय। जी उस्मान एंड खदीजा, डिड यू डिटरमिन द टेम्परेचर, द फाइनल टेम्परेचर?
जी हादिया, फातिमा, बख्तियार, अली भट्ट, किसी बच्चे ने फाइनल टेम्परेचर डिटरमिन किया? जी खानदान, सर अभी कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलो शाबाश। सर मेरा 13.6 आ रहा है। 13.6 डिग्री सेल्सियस, खानदान का 13.6 आ रहा है। आप लोग अपना अपना चेक करके सर बताएं। मेरा भी नहीं सर एक बार समझा देंगे क्योंकि मेरा 1000 में आ रहा है, वो 7000 कुछ आ रहा है मेरा। यार देख, 17 से इतना हाई टेम्परेचर तो नहीं हो सकता ना, ठीक है? यस सर वही। वाला फॉर्मूला यूज करो। P1 इनमें से कौन सा है? 1 का क्या मतलब है, इनिशियल या फाइनल? सर इनिशियल। शाबाश। ये इनिशियल प्रेशर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है। दोनों की वैल्यूज किधर आ जाएंगी? V गायब हो जाएगा, V1 और V2 दोनों गायब हो जाएंगे। This is final pressure and you have to determine final temperature. तो ये तीन वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये चेंज होके इन्वर्ट होकर चले जाएंगे। तो क्या आएगा? 13.5 6 तकरीबन इतना। वक्त याद करो बेटा, ट्राई करो। फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे। छोटे थे आप लोग, बलून से खेलते थे ना बहुत ज्यादा, अच्छा लगता था। लेकिन वो धूप में खेलते थे तो फट जाता था। क्यों? प्रेशर 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 तो वैसे नहीं था, छांव में भी प्रेशर होता था। धूप में क्या होता था उसके साथ? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था। ओके, फिर क्या होता था बलून? सर अब 13.6 आ रहा है। ऑलराइट, गुड। जी बलून वाले बच्चे, जिनको बलून अच्छा लगता है, धूप में हम क्यों नहीं लेके जाते हैं इसको? हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? क्यों? प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने से बलून बड़ा हो जाना चाहिए, एक एक्सटेंड का लेकिन उसकी इलास्टिक लिमिट आ जाती है ना इतनी, क्या उससे तो और एक्सपैंड नहीं हो सकता, फिर वहां पे वो हट जाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेटेड है कि नहीं इसमें? सर मेरा एक क्वेश्चन था जी सर, हम कहते हैं कि टेम्परेचर से बलून जो है फट जाता है, बट लेकिन सर हम ये क्यों नहीं देखते कि अगर बाहर ज्यादा टेम्परेचर है तो उसका अंदर का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, जिससे लाइक इक्वल प्रेशर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होता कि इक्वल प्रेशर होता है दोनों का? ऑलराइट, ये हमारा टेम्परेचर के बाद वी आर गोइंग टू डू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो उसमें हम ये पार्टिकल्स की नेचर और उनकी काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे डिटेल से। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं ना, एयर पार्टिकल्स। इसको अगर मैं फ्रीजर में रख दूं तो इसका साइज छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा? क्यों? कभी सोचा है? सर छोटा होगा। तो रिमूव करेंगे। शाबाश, एनर्जी कम हो जाएगी, धूप में जाके वो तेज हो जाएंगे। तेज होंगे तो दे विल प्रेस इट हार्ड, ये वॉल्स को वो ज्यादा फोर्स से प्रेस करेंगे, यानी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? पहले बड़ा साइज होएगा जितना मैक्सिमम हो सकता है, उसके बाद हट जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? और सो जिन बच्चों ने, प्यारे बच्चों ने वर्कशीट नहीं की थी प्रेशर वाली, वो आज कर लें, ठीक है? और करके अपने पास रख लो। टुमारो वी आर गोइंग टू सी दैट, हम इकट्ठा करेंगे क्विकली क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है उसमें, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर वीडियोस। ठीक है, तो कल हम इकट्ठा वो करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेम्परेचर। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर का हल्का सा यहाँ पे मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ, आपसे बल्कि पूछ रहा हूँ, ये बिठा दूँ, सब चीजें ठीक है? ओके हैं? अच्छा, ऑलराइट। प्रेशर, टेम्परेचर और काइनेटिक थ्योरी, ये बेटा तीनों चैप्टर्स चलेंगे हमारे, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स आपस में बड़े ओवरलैपिंग हैं।
तो आपने इन तीनों टॉपिक्स को इकट्ठा लेके चल लें, फिर जो एंड में मैं इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव सा टेस्ट दूंगा, उसमें ये तीनों चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर। ऑलराइट, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज टेम्परेचर? What is temperature? Sir, जी, the pressure is working on the test phase. हाँ जी, ग्रुप में पढ़ी गई है, उसको कर लेना है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? टेम्परेचर कहा जाता है तो क्या चीज ध्यान में आती है? बुखार, फीवर, हीट, और इसके अलावा टेम्परेचर फर्स्ट थॉट क्या आता है माइंड में आपके, जैसे वो कहते हैं टेम्परेचर, वो बताओ। थर्मामीटर। थर्मामीटर, शाबाश। उसकी इमेज आती है या लिखा हुआ आ जाता है? थर्मामीटर दोनों मैंने बना दिए बेटा आपको। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ किस चीज की? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? कोई और इसके अलावा? जी, ये जो खामोशी से बैठे हुए हैं बच्चे, आदिया, फातिमा, उस्मान एंड खदीजा। उस्मान एंड खदीजा तो दे आर क्वाइट फार अवे, इसलिए उनका तो सिग्नल्स लेट आएंगे, कल तक आएंगे, लेकिन बाकी लोग तो बोलो ना जी। When we say temperature, what is the first thought which comes to your mind? यही आती है सर। ऑल राइट, अच्छा थोड़ा सा इसको इजी कर दूं। टेम्परेचर में और हीट में तो फर्क क्या है? क्या फर्क? Sir, वही बात है, वही बात है। तो हीट क्या होती है? Sir, heat से hotness होती है। सिर्फ हॉटनेस होती है। सर, टेम्परेचर जो है मेजरमेंट होता है और हीट जो है वो एक हॉटनेस होती है। ओके, टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। किस चीज के मेजरमेंट? सर, हॉटनेस और कोल्डनेस। उसको हीट कहते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। These all are related to temperature। शाबाश। तो टेम्परेचर क्या है? इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है यार, देखो मैटर को किसमें मेजर करते हो? शाबाश। और मैटर होता क्या है? which occupies space and has mass। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। तो हीट क्या है? एनर्जी है ना? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। So temperature is actually the degree of hotness. It's not only the hotness, it is the degree. Aruba, you said hotness or coldness of a body. Shabash, that was somehow very close. So this is, मुझे ये बताओ कि मैं अगर वाटर है एट 5 डिग्री सेल्सियस या आइसी वाटर है, तो नॉर्दर्न एरियाज में गया हूं, वहां पे देयर इज अ लेक जिसमें आइस क्यूब्स बड़े बड़े और वो सारे फ्लोट कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू टेक अ बाथ इन दैट? कैसा है वो पानी आपके लिए? हॉट और कोल्ड और वेरी कोल्ड? वेरी कोल्ड।
लेकिन जो रशियन और साइबेरियन स्टेट्स हैं उनके लिए तो ये वार्म वाटर है, वो तो इतने खुश होते हैं, ऐसे छलांगे लगाते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए जो हॉटनेस है हो सकता है वो किसी और के लिए उतनी हॉट ना हो, या मेरे लिए जो कोल्डनेस है वो किसी और के लिए शायद उतनी कोल्ड ना हो। ठीक है, अगर हम उनको साइबेरिया में इग्लूज में जो लोग रहते हैं उनको ले आए इधर, यहाँ पे यख सर्दी दिसंबर की पड़ रही हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो कैसे फिर रहे होंगे? आराम से, विदाउट अ स्वेटर इवन। और अगर उनको मई जून में ले आए फिर क्या होगा उनके साथ? एवेपोरेट हो जाएगी। ऑलराइट। तो हॉटनेस और कोल्डनेस ये फीलिंग्स हैं, ठीक है, हर किसी के अलग अलग। ऑलराइट। हाँ, फ्रांस में जब टेम्परेचर 42 डिग्री पहुंचता है तो लोग बेचारे सफर करते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल होता है गर्मियों में 42 48 तक चला जाता है। सो हॉटनेस और कोल्डनेस इज सॉर्ट ऑफ हाउ डू यू फील द थिंग्स। भाई इजी वे है, आजकल गीजर चल रहे हैं ना साथ के, तो एक हाथ गर्म पानी में हल्के वार्म वाटर में रखो और एक कोल्ड में रखो और फिर शिफ्ट कर दो। यू विल फील लाइक जो ठंडे से आपने गर्म किया तो मजेदार, और ये वाला बहुत ठंडा लगेगा, पहले से ज्यादा ठंडा लगेगा। सी, तो टेम्परेचर ये नहीं है, टेम्परेचर इज द डिग्री, इट इज द एग्जैक्ट मेजर, इट इज द क्वांटिफाइड फॉर्म। इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर, फील कर सकते हो हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर में ये नहीं, टेम्परेचर में क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, बिकॉज इट इज द मेजरमेंट ऑफ। और मेजरमेंट के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। और थैंक यू, शाबाश, अली ने भी कहा था, वी यूज थर्मोमीटर। क्या है ये? उर्दू पंजाबी में हम इसको थर्मामीटर कहते हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। थर्म मीन्स हीट, मीटर मीन्स टू मेजर। थर्म का मतलब है बेटा हीट, और मीटर का मतलब इंस्ट्रूमेंट, हीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, थर्म, थर्मोडायनामिक्स। और वो जो होती है ना पैकिंग वाली शीट जिसको समुद्री जहाज भी कहते हैं लोग, दैट इज थर्मोकोल पैकिंग मटेरियल, थर्मोकोल शीट। वो इंसुलेटिंग मटेरियल को बनेगा, उसका भी नाम इससे नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू मेजर हीट और मेजर हीट मेजरिंग डिवाइस। थर्मोमीटर्स पढ़ेंगे हम, उसमें टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स पढ़ेंगे। ऑलराइट, बस आज का काम इतना ही। हमें टेम्परेचर का पता चल गया, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और मेजरमेंट ऑफ हीट। ओके बेटा, सी यू पीपल टुमारो इंशाल्लाह। थोड़ा सा पढ़ लेना। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज।